So students, in this lecture we will be studying about face wash. So face wash is a product which is used to wash the face or to cleanse it. So oily skin needs utmost care, else skin problems like acne, pimples, blackheads, whiteheads, blemishes start to show. The first step in skin care routine for oily acne prone skin is cleansing, thus choosing the correct facial cleanser for oil skin is important. So students, अब आपको ये कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, पिंपल्स, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, ब्लेमिशेस, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इनसे बचने के लिए सबसे जो पहली जो प्रिपरेशन है जो स्किन पे लगाई जाती है वो होता है क्लिनजर्स या फिर फेस वॉश। सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी डिफरेंट फेस washes अवेलेबल इन मार्केट। हिमालयन प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश, वाव स्किन, साइंस एप्पल साइडर विनेगर फॉर्मिंग फेस वॉश, निविया मैन फेस वॉश। So these are all the various face washes available in the market. और साथ ही अगर हम क्लिनसर्स की बात करें, so these are the cleansers. So the basic difference between a cleanser and a face wash is that face wash में आप पानी के साथ फेस वॉश लगा के स्किन को साफ करते हैं, और क्लिनजर में क्या है, आप क्लिनजर को लगा के एक क्रीम होती है जिसको आप लोशन होता है बाद में वाइप ऑफ कर देते हैं। So these are the cleansers. So there are some terms that you should know: acne, pimples, blackheads. So I will show you. So acne is a infection of oil glands. Whitehead is also an infection of hair follicles. These are the blackheads. These are black in color. Okay. So whitehead is a type of acne that forms when dead skin cells, oil and bacteria become trapped within one of your pores, and blackheads are small bumps on the skin that result from clogged hair follicles. तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनका कारण होता है पोर्स का क्लॉग होना, पोर्स बंद होने स्किन के। तो उससे बचने के लिए हम यूज़ करते हैं क्लिनजर्स एंड फेस वॉशेस। So there are many face washes in India for oily skin types. Most of them have antibacterial ingredients like tea tree, neem, tulsi, salicylic acid, etc. These ingredients along with other ingredients help to eradicate the pimples. They also help to combat the oil production for oil-free skin. Oil skin face wash can be foaming in nature, which takes off all the traces of oils, sweat, dirt. तो जो इनका फॉर्मिंग नेचर होता है इससे क्या होता है, ये वॉशिंग एक्शन होता है इनका, सारे के सारा ऑयल स्वेट डर्ट को ये रिमूव कर सकते हैं। दे कैन बी जेल बेस्ड एंड आर गुड फॉर वेरी ऑयली स्किन, while gel based face washes are ideal for combination skin types. While both cleansers and face washes do the basic common job of cleansing your face, a face wash is foaming face wash is a foaming cleanser, while a cleansing lotion, cleansing milk or simply called cleanser is non foaming. तो जो बेसिक डिफरेंस है क्लिनजर और फेस वॉश में क्या है कि फेस वॉश फोमिंग होता है और क्लिनजर इज नॉन फोमिंग। तो क्लिनजर का दूसरा होता है इट डजंट नीड टू बी वॉश्ड ऑफ, सिर्फ इसको क्या करना होता है, वाइप ऑफ करना होता है। अ क्लिनजर डिजोल्व्स अवे एक्सेस ऑयल, मेकअप एंड ग्राइम फ्रॉम द फेस. These are oil soluble impurities. They can be removed by a face wash too, but that might not be 100% effective. तो मेकअप्स को साफ करने के लिए जो ज़्यादा ऑयल सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसके लिए क्लिनजर्स यूज़ होते हैं।
फेस वॉश भी कर सकता है, पर ऑयली, ज़्यादा ऑयली अगर कोई इम्प्योरिटी हो, फेस पे मेकअप लगा हुआ हो, तो उसको साफ करने के लिए क्लिनजर ही यूज होता है। फंक्शन ऑफ फेस वॉश इज टू रिमूव डीपर सीटेड डेब्रिस एंड ऑल्सो क्लींस पोर ड्यू टू इट्स फोमिंग एक्शन। While cleansers are especially good for dry or sensitive skin, for sensitive skin use of gentle face wash just once a day is recommended. तो once a day आप फेस वॉश को यूज़ करो अगर सेंसिटिव स्किन है, बाकी अगर आपकी ज़्यादा ऑयली स्किन है तो फिर आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो। कंपोजिशन, देयर आर मैनी इंग्रेडिएंट्स दैट कंस्टिट्यूट अ फेस वॉश एंड क्लिंजर्स. These additives are used to unclog pores, to remove debris and dirt from the skin and to condition the skin to flake less and appear healthier. तो जो इसके एडिटिव्स का फंक्शन होता है कि पोर्स क्लीन हो जाएं, जो इम्प्योरिटीज़ है, डेब्रिस है स्किन पे लगा उसको वो वॉश हो जाए और फ्लेकिंग कम हो जाए स्किन की। सो फर्स्ट थिंग इज एलेंटाइन। सो एलेंटाइन के बारे में हम पढ़ते हैं। एलेंटाइन को FDA ने 2 to 5% अलाउ करा है। सो एलेंटाइन इज फाउंड इन प्लांट लाइक कैमोमाइल, वीट स्प्राउट्स, शुगर बीट, कॉम्फ्रे, अ हर्ब विद पर्पल फ्लावर। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये नेचुरल ओरिजिन का होता है। बाकी स्किन पे क्या होता है? Allantoin is a non-irritating ingredient that soothes and protects the skin with the ability to help heal the skin and stimulate the growth of new tissue. It is a great all-rounder for keeping skin at the top of its game. So basically क्या है कि ये सूदिंग एक्शन होता है एलेंटाइन कंपाउंड का, नेचुरली प्रेजेंट कंपाउंड होता है। So it can be used from 0.5 to 2% concentration in over-the-counter skin protectant products. It is classified as both a skin protectant and skin conditioner. Skin protectants relieve skin from irritation. Skin conditioner reduce the dryness and flaking of skin, making it appear healthier. Skin appears supple after the application of skin conditioners. So next one is sodium lauryl sulfate. सो दिस इज एन सर्फेक्टेंट, एनानिक सर्फेक्टेंट होता है। तो फॉर्मिंग एक्शन के साथ ये क्लीनिंग करता है। इट बिलोंग्स टू क्लास ऑफ केमिकल क्लास ऑफ अल्काइल ईथर सल्फेट साल्ट्स ऑफ सल्फेटेड इथोक्सिलेटेड फैटी एसिड। दे हेल्प टू प्रोड्यूस फोम एंड मेक द स्किन सॉफ्टर। दे आर टिपिकली पुट इन स्किन प्रोडक्ट्स वेयर देयर इज अ हाई मिनरल कंटेंट। तो जिस प्रोडक्ट में ज़्यादा मिनरल कंटेंट होता है उसके अंदर SLS डाला जाता है। फॉर्मिंग एक्शन के साथ ये सफाई करता है और लेदर बनाता है। लेदर का मतलब फोम ही होता है। नेक्स्ट इज प्रोपाइलिन ग्लाइकोल इज वाइडली यूज कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर एडिटिव एंड इज एन ऑर्गेनिक अल्कोहल। इट हैज़ बीन रिव्यूड बाय कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट रिव्यू एज सेफ अप टू 50% concentration. This additive is put into formulas to reduce flaking of skin and to restore moisture. तो मॉइस्चर को रिस्टोर करने के लिए स्किन में यूज होता है ये प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। ट्राइथेनोलामीन is used in skin care products as a pH control and as an emulsifier. It is considered safe up to 5% concentration. As an emulsifier, it makes water soluble and oil soluble additives to blend together by reducing surface tension. So दोनों ये emulsion बनाने में काम आता है, emulsifier नाम है इसका, और दूसरा pH कंट्रोल में भी हेल्प करता है। अगर फॉर्मुलेशन आपकी 2 एसिडिक या फिर 2 अल्कलाइन है तो उसको कंट्रोल करने में यूज होता है। नेक्स्ट इज ग्लिसरीन। ग्लिसरीन कैन बी बोथ a natural product and a synthesized product and is a sugar alcohol. It is used in many formulas as a skin conditioner, a skin protectant and a humectant. As a skin conditioner it reduces skin flaking and as skin protectant it reduces skin irritations. Its humectant properties keep water and moisture in the skin so that it does not dry out. So skin को dry होने से बचाता है ग्लिसरीन। इसके बाद आता है एक्ने फेस वॉश।
सो मैंने पहले ही बताया कि एक्ने के अंदर क्या होता है, क्लोग्स आपके ब्लॉक होके उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाती है बैक्टीरिया की। तो उसमें जो कंपाउंड्स यूज़ होते हैं, नंबर 1 इज सैलिसिलिक एसिड। दिस बीटा हाइड्रोक्सी एसिड यूजफुल फॉर फेस वॉश इंटेंडेड फॉर एक्ने प्रोन स्किन, यूजली इनकॉर्पोरेटेड इन 2% concentration. It dissolves sebum build up and dirt to fight blackheads and whiteheads. This active ingredient can be extremely drying to the skin when overused, so a good moisturizer must always follow. तो ये ड्राइंग करता है स्किन की, बाद में मॉइस्चराइजर जरूर लगाना चाहिए इसके बाद। ग्लाइकोलिक एसिड, दिस अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड इज ड्राइव्ड फ्रॉम फ्रूट्स। इट हेल्प्स टू प्रमोट क्विकर स्किन सेल टर्नओवर बाय स्लोइंग ऑफ डेड सेल। तो डेड सेल्स का रिमूवल करता है ये, और नई स्किन नीचे से फिर क्विकर आ जाती है। दिस कीप्स द स्किन अपीयरिंग इवन टोन्ड एंड फ्रेश एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स डेड स्किन फ्रॉम क्लोगिंग पोर्स एंड कॉजिंग पिंपल्स। Glycolic acid additionally stimulates collagen and elastin production, which is helpful as an anti-aging treatment. ठीक है, तो ये एंटी एजिंग में भी काम आता है ग्लाइकोलिक एसिड। अदर इंग्रेडिएंट्स इनके अलावा, ये वैसे हमने डिस्कस कर ही लिए हैं सारे। इसके बाद बेसिक जो डिफरेंसेस हैं क्लिंजर और फेस वॉश में। सो क्लिंजर इज अ वाइप ऑफ प्रिपरेशन एंड फेस वॉश इज अ वॉशिंग प्रिपरेशन। तो फेस वॉशेस फॉर्म अप लाइक सोप व्हेन अप्लाइड टू लीव यू फीलिंग क्लीन एंड रिफ्रेश। और दूसरा, अगर हम क्लिंजर की बात करें तो ये क्या है, ये सिर्फ वाइपिंग के साथ यूज़ होता है, इसके साथ वॉश नहीं करा जाता। दे कैन बी यूज टू रिमूव मेकअप एंड डर्ट फ्रॉम योर फेस मोर देन सो देन अ फेस वॉश वुड। तो फेस वॉश से अच्छी आसानी से ये इसको रिमूव कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं कमर्शियल फेस वॉशेस के। PCA स्किन फेस 1 फेशियल वॉश, Belly एंटी ब्लेमिश फेशियल वॉश, Bliss Fabulous foaming face wash. So these are all the example of face washes.